علماء سے پوچھو کہ لفظ کتنے درجے ترقی کرنے کے بعد تب وہ قول کہلاتا، تب قول کہلاتا ہے۔ لفظ انسان کی بولی کو کہتے، تو خیر انسان کی بولی کو لفظ نہیں کہا جا سکتا، مگر رب نے چوٹی کی بولی کو قول کہا، چوٹی کی بولی کو قول کہا۔ تو سرکار اجم العلماء فرمانے لگے مولانا تشویش کی بات نہیں ہے، انسان کی بولی کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم صرف انسان کی بولی سمجھ پاتے ہیں، مگر اللہ کا نبی جانور کی بولی سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے حق میں جانور کی بولی لفظ نہیں ہے، لیکن جو سمجھ لیتا ہے اس کے حق میں لفظ بھی ہے، قول بھی ہے۔ میں نے کہا بول حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نہیں غیر اللہ ہے، تو کہتا تھا دور سے سننا صرف اللہ کی شان ہے، غیر اللہ نے دور سے کیسے سن لیا؟ تو کسیانہ ہو کے بولا مولانا اصل میں اللہ کے نبی تھے۔ ہم نے کہا اچھا بے شک نبی تھے، اور یہ جو گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ رسولوں کے امام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے صاحب سترت نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرق سے لے کے غرب تک آپ کی حکومت تھی، انسو جن سب پر آپ کی حکمرانی، وہ یوسف طیور تک آپ کے تابع فرمان، مگر ان تمام عظمت و جلالت کے باوجود اشرا کی شب جب سارے انبیاء مقتدی تھے، میرا نبی امام تھا، امام تھا، کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس کہنا یہی ہے کہ جب مقتدی اتنا سنتا ہے تو امام کتنا، مقتدی اتنا سنتا ہے تو امام کتنا سنتا ہوگا۔ اور یار ہمیں اپنے نبی پہ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی جانب سے بڑا خوبصورت سے سلام آیا، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ رب کی جانب سے سلامتی کے جلوں میں نہانے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، بلکہ عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلام ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، مولا اسے بھی سلامتی سے محروم نہ رکھ جو تیری بارگاہ قدس تک آیا ہے، اور اے اللہ انہیں بھی محروم نہ رکھ جنہیں تیرا رسول زمین پہ چھوڑایا۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی اتنی بلندی پر ہمیں نہیں بھولے، اتنی پستی میں رہ کے ہم ان کو کیسے بھول جائیں گے؟ اس لیے ہم نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دو مثل فارس رد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جگتے دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور دوستو جہاں تک بات آنے کی ہے، میرے آقا کے میلاد کی بات ہے، تو میلاد کا معاملہ یہ ہے نا کہ ساری کائنات ہی بنائی گئی میلاد مصطفیٰ کے لیے، رسول کو بھیجنا مقصود تو کچھ نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کہاں بڑے مینا، لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور بزرگ علماء کی موجودگی میں سرکار والا تشریف فرمائے، آپ پوچھو کہ ایک عقلمند آدمی کبھی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑائے جہاں نہ دانا ہونا پڑے؟ یہ پسند کرے گا؟ اور رب کہ حکیم کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا، وہ اپنے خلیل کو حکم دے لے جا کے وہاں چھوڑاؤ، خدا کی قسم چھوڑوانا ایک بہانہ تھا، پر حقیقت یہ سارا کام میلاد نبی کی تمہید تھی۔ کیونکہ اگر حاضرہ جائیں گے نہیں، اسماعیل ٹھہریں گے نہیں، ریڑیاں رگڑیں گے نہیں، زمزم نکلے گا نہیں، پرندے آئیں گے نہیں، بڑوں جو کرو گے اکٹھا نہیں ہوں گے، مکہ بسے گا نہیں، مجھے اپنے حبیب کو ہی بھیجنا ہے۔ اس لیے خلیل اللہ یہ بھیجنا بسانے کا بہانہ ہے، بعد میں محبوب خدا کو لانا ہے۔ جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ یہ سب میلاد مصطفیٰ کی تمہید نہیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ قربانی کے لیے چھری چلا رہے بیٹے کے گردن پر، چھری چلی تھی؟ کیوں نہیں چلی تھی؟ تیز نہیں تھی؟ بولوگے حضرت اسماعیل نرم و نازک نہیں تھا؟ بازو خلیلی طاقتور اور پاورفل نہیں تھے؟ باپ بیٹے کے جذبہ اظہار و قربانی میں کوئی شک ہرگز نہیں، سارے اسباب اکٹھا ہے، اس کے بعد بھی چھری نہیں چلی ہے۔ زمین پہ رکھ دیا میں ڈال لوں تو گاڑی، تیرا کام ہی چلنا ہے تو چلی کیوں نہیں؟ تیرا کام ہی تھا گوشت و گوشت میں کھیلنا تو کھیلی کیوں نہیں؟
उन्हें अपना काम बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ज़बान हाल से जुड़ी कह दी सरकार हमने अपना काम, मेरा काम काटना था, मैंने काटा नहीं। आप नाराज होने लगे। आका, छुरी का काम तो काटना है, लेकिन आग का भी तो काम जलाना होता है। जब आग को नारे नमरूद में डाला गया था, आग ने अपना काम क्यों नहीं किया था? आग ने अपना काम क्यों नहीं किया था? छुरी मेहरबान हो गई बेटे पर, आग मेहरबान हो गई बाप पर। सरकार से ये साहब फरमाने लगे मौलाना ऐसा मत कहो, दोनों मेहरबान हो गए अपने आप पर। छुरी की कोई मेहरबानी नहीं है, आग की कोई मेहरबानी नहीं है, दोनों मेहरबान हो गए अपने आप पर। तो हजरत ने फरमाया मौलाना इसमें न छुरी का कमाल है, न आग का कमाल है, न छुरी का कमाल है, न आग का कमाल है। हमने कहा हुजूर तो आप ही मुबारक ज़बान से फरमाए कमाल किसका है? कहा सुनो, न छुरी का कमाल है, न आग का कमाल है, दोनों जगह पर नूर मुस्तफा का कमाल है, नूर मुस्तफा का कमाल है। वही नूर जब तक पेशान इब्राहिम खलील में था, आग की मजाल नहीं कि जला सके, आज वही नूर पेशान इस्माइल में है, छुरी की हिम्मत रही कि काट सके। आप बोलो जिस रसूल का आना इतना शानदार भूलने के लायक है? हरगिज़ नहीं। बड़ा तफसीली मजमून है मिलाद मुस्तफा का। लेकिन सुना होगा आपने कि आका जब अपनी माँ के शिकमदार में तशरीफ फरमा थे, बयान का मुझे किसी बोझ तकलीफ कराने सुनने का जो आवाज होते हैं ख़वातीन को, इसमें से मुझे किसी भी आर्ज़े का एहसास, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, बोझ का एहसास ही नहीं हुआ। ज़माना बारगाह रहमत आलम में 10 वक्त अर्ज़ करने लगा सरकार बेशक आपका आना लाजवाब है। और बच्चे तो अपनी माँ के लिए मुसीबत का सामान बन जाते। आप अपने माँ के शिकम में थे, आपकी माँ को बोझ का कोई एहसास नहीं हुआ। और दस फरमा लेगा मौलाना नबी दुनिया में आता किस लिए? पहले ये तो समझो आता किस लिए है। अगर माँ ने बोझ नहीं महसूस किया तो ताज्जुब क्या है? नबी दुनिया में इसलिए आता ही नहीं कि अपना बोझ किसी पर डाले। वो तो दो आलम का बोझ उठाने आता है, उठाने आता है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे हमको जरूरत है इनका बहुत ज्यादा जिक्र करने का, अपने रसूल की बस तक तारीफ कर लेंगे। नाम ले लो नाम, अरे हम नाम क्यों लेंगे? तुम्हारी हरकत काफी है, नाम लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी हरकतें काफी है जाहिर करने के लिए। एक आदमी को पूरा गांव कहे उल्लू है, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब कहे उल्लू है। एक दूसरे जजमेंट किया कि इस आबादी को छोड़ भी देना चाहिए। जब सबको मालूम हो गया कि मैं उल्लू, ऐसी आबादी में रुकना ठीक नहीं है। चला गया 80 कोस दूर और कहा मैं आराम से जिंदगी गुजारें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम उल्लू हैं। एक कुएं पर बैठा तो किस अंदाज में, जान तो कौन सी स्टाइल में है, पैर को किया कुएं के अंदर और बैठ के पैर हिला रहा था सुबह सुबह। एक औरत पानी भरने आई, कहा कहां से उल्लू आ गया? आए दूर रहो, असी को तो हमारा गांव कैसे जाने उल्लू ना? बुरा मत मान, तेरी हरकत बता रही है। कहते हैं इनका नाम लो, हम नाम क्यों ले? बदतमीजी से खुद साहिब हो जाएगा कि बदतमीज है। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई एक बोली बोले नबी करीम के बारे में माद अल्लाह उमर करके मिट्टी में मिल गए, और दूसरी बोली बोल रहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तो हर आदमी समझ लेगा कि पहली बोली गुस्ताखे रसूल की थी, दूसरी बोली आशिक़े रसूल की है। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तकरीर का मौजू है मिलाद मुस्तफा, मेरे नबी का आना इतना शानदार है कि भूलने के लायक वो लोग हरगिज़ भूलने के लायक नहीं। तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर में रसूल नूर। हाँ ये है लिबास बशरियत में तशरीफ लाए, पॉइंट याद रखना, लिबास बशरियत में तशरीफ लाए। तो कहने लगा बदअकीदा कि मौलाना जब लिबास बशर में है तो हरज क्या है? बशर कहने, हमने कहा बशर कहने में हरज नहीं है, लेकिन अपनी तरह बशर कहने में बहुत हरज है।
अपनी तरह के तो इसमें हरज है, बशरियत के लिबास में आए क्यों? कहने लगा, हमने कहा अच्छा तुमसे पूछ के आना था, क्यों आए, जरूरत थी। मैंने कहा अच्छा लिबास बशरियत में अगर आने की वजह से बशर कहने की तुम असराई हो तो एक बात मुझे बताओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में, हदीस जिब्रील मेरी नजर में है कि एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए और आदमी की शक्ल में आए। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, आदमी की शक्ल में, इजार रजुलन के अल्फाज है, आदमी की शक्ल में। मैंने कहा तक किसी वहाबी ने जिब्रील को अपनी तरह क्यों नहीं कहा? वो भी तो है मेरे पास बशर में। कहा था वो जिब्रील थे, हमने कहा वो जिब्रील जरूर थे, सैयदुल मलाइका थे, इसमें शक नहीं है, मगर आला हजरत के मशवरे से एक बात कह दूं, वो सब कुछ थे मगर मेरे रसूल के खातिम थे। जिब्रील ने सरकार से क्या कहा, उसने खाइले वाला खातिम सुल्तान है। जिब्रील लिबास बशर में आए। अच्छा अगर जहन हाजिर समझदार होगा तो एक बात और कह दो, लिबास बशर में आए तो जरूरत थी, इसीलिए जब आए तो पहली बार ये ड्रेस इख्तियार किया था जिब्रील ने। सहाबा जो मौजूद था कि बार कोई पहचान नहीं सका। हदीस शरीफ में आप पढ़िए, अंदाजा होगा साहबा बड़ी तशवीश में थे, अगर ये बाहर से आते तो आसाने सफर गर्दो गुबार में चेहरा हटा होता, और अगर हमने के होते तो भी हम जान लेते, लेकिन ये बिल्कुल नया आदमी है कौन, कुछ अदब से अर्ज तो नहीं कर सके। लेकिन जब जिब्रील अमीन चले गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को राह करम खुद ही तसल्ली दी और फरमाया हुआ जिब्राइल अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, वो जिब्रील थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। पॉइंट याद रखा, जिब्रील थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। पता चला कि जो दीन सिखाने आए जरूरी है कि उसी लिबास में आए जिससे कौम मानूस हो। वरना हमने तो ये भी पढ़ा है, कहते जिब्रील के 600 पर हैं, कितने पंख, 600, और साइज क्या है उसका? एक सिरा मशरिक में जहां से सूरज निकलता है और दूसरा मगरिब में। अपने तो नाते साकल में ये भी समझ में आता है कि अगर पूरे अपने लिबास में आते तो बैठते कहां। लिबास बशर में आए और सरकार ने कहा कि आने की वजह इस अंदाज में तुम्हें दीन सिखाना मकसूद था। जबकि जिब्रील दीन सिखाने नहीं, दीन सिखाने का जरिया बनने आए थे। सवाल करते जाएंगे, नबी जवाब देते जाएंगे, सहाबा सुनते जाएंगे। मजाजन कह दिया गया कि दीन सिखाने आए थे। मैंने कहा उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितने सहाबा मौजूद थे? हजरत में फरमान मौलाना बहुत चंद थे, उंगलियों पर गिने जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि 1000 2000 थे। हमने कहा चंद सहाबा को दीन सिखाने के लिए जिब्रील को लिबास बशर में आना पड़ा। मेरा रसूल तो सारी कायनात को दीन सिखाने आया था, अगर उसने बशरियत का लिबास पहन लिया तो जुर्म क्या? होके में आने जाए कहीं फिक्र आ गई सरकारे कायनात लिबास बशर में नूर। और दोस्तों इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, नूर है। इसलिए मेरे आका के जिसमें अतहर का साया नहीं था, क्या साया नहीं था। आला हजरत जैसा आशिक तलाश तो करो, तो माते साया तो था ही नहीं। लेकिन अगर तमसीलन मानना ही है तो एक मशवरा है कि मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बन गए, आधे से हसन बन गए। आला हजरत का इश्क है, वरना साया नहीं था। क्यों नहीं था इसको बस जरा समझ लेना। असल में एक है साया, एक है आपका जिस्म। बहुत दिमाग हाजिर रखना, पूरी कोशिश करूंगा दर्शगाही आदमी हो कि जहन में बात उतार दूं। एक है आपका साया, एक है आपका जिस्म। एक आपका जिस्म, एक आपकी परछाई। अगर आप कहिए मौलाना दोनों में फर्क क्या है, तो जल्दीबाजी में सूबे साहब कुल्ला में फलसफे की जबान में कहा कि सुनो, जिस्म कसीफ होता है, साया लतीफ होता है। सबने कहा हजरत रस्ती कठिन भाषा नहीं चलेगी, ये कसाफत और लताफत समझाने में घंटों लग जाते हैं। जिस्म कसीफ और साया लतीफ, तो वो फर्क मैं आपको समझा दूं मिसालों के जरिए। ये दोस्तों एक बात बताना, एक है आपका जिस्म, एक है आपकी परछाई। अगर जिस्म को काटो तो कटेगा कि नहीं, और साये को काटो तो कटेगा। चाहे तलवार से, चाहे चाकू से, चाहे गोली से, चाहे बम से, परछाई नहीं कटती है। ये जिस्म की कसाफत है जो
वो साए की लताफत है जिस पर कटने पिटने का कोई असर नहीं। और नहीं समझे तो समझो, जिसम अगर आपके जिसमें नजासत लग जाए तो नापाक होगा कि नहीं, उसे धुलना जरूरी है। और आपकी परछाई अगर पैखाने से गुजर जाए तो नापाक होने का कोई फतवा लगाएगा? इस पर अगर फतवा लगे तो कौन मस्जिद में जाएगा? इसलिए कि रोड के दोनों तरफ इस तरह की सजावटें बहुत मिलेंगी। ध्यान है कि नहीं? बल्कि देहात में तो रोडों की तामीर का मकसद ही लोगों ने समझ लिया कि इसीलिए बना कि बीच में लोटा रखो, दोनों किनारे तशरीफ रखो, आना जाना दो। साया बराबर परछाई से गुजरता है, साया बराबर गुजरता है कसाफतों नजासतों से, मगर कभी आलूदा नहीं होता। इसीलिए आप बराबर नहाते हैं, वो कभी गुस्ल नहीं करता। जिस्म की कसाफत है जो नजासत को कबूल करे, वो साए की लताफत है जो नजासत को कबूल नहीं करता। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बड़ा टाइम निकल जाएगा, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इस एतबार से अगर गौर करो तो साया जिस्म से कुछ बेहतर हुआ, सही है ना? न उसे खाने की जरूरत है, नहाने की जरूरत है, नापाक भी लो। साया इस एतबार से जिस्म से कुछ बेहतर। सुनो जरा सा, आला हजरत ने लिखा कि आका के जिस्म अतार का साया इसलिए नहीं था कि प्यारे महबूब साया जिस्म से किसी न किसी एतबार से कदरे बेहतर होता है। और रसूल, मैंने तेरे जिस्म से बेहतर कुछ पैदा नहीं किया, इसलिए मैं साजी बनाया, मैं साया बनाया। आखिरी गुफ्तगू क्या करोगे? नूर आया तो खुशी हुई कि नहीं हुई? अच्छा बता, इतना बड़ा मतलब चाहते लाइट रहेगी, चली जाए, सब लोग चाहते हैं, चोर भी चाहता है, वो तो चाहता है कि रहे ही नहीं, ताकि अंधेरे में अपना बिजनेस चलता रहे। गलत नहीं कह रहे। अरे भाई, बहरावा में आया, मान लो लाइट नहीं थी, भटक रहा था, डॉक्टर सिराज आलम सब हमारे हमदर्द साथी हैं माशाल्लाह, इसको आप आसान जबान में क्लास पहलू कह लीजिए, पढ़ते थे, बड़े कर्म फरमा थे, हमदर्द भी थे, हम फर्श भी थे। अल्लाह ताला ताल्लुक बरकरार रखे, आमीन आमीन। आए इनके मोहल्ले में कठौतिया में भटकने लगे, अरे लाइट नहीं थी, मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं, नाली में गिर जाऊं तो, गड्ढे में चला जाऊं तो, रास्ता दे देंगे, खड़े हैं चुपचाप, सन्नाटा, तारीकी के डर से खड़े हैं, गिर न जाए, पैर न टूट जाए, फ्रैक्चर न हो जाए। तो मेरे दिल से यही तो दुआ निकल होगी, इलाही किसी तरफ से उजाला भेज दे, बोलो मौला कहीं से कुछ रोशनी का सामान कर दे। दुआ कर ही रहे थे, अकेले डर रहे थे, अल्लाह क्या करे, एक तो दूसरा मुल्क है, अधेरे में कहाँ जाएंगे, परेशान थे। इतने में डॉक्टर साहब ही 3 सेल का टार्च लिए दूर से आ रहे थे, दूर से ही रोशनी दिखी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बोला तेरे एहसान है, कोई उजाला वाला आ रहा है, कोई रोशनी वाला आ रहा है। जो भी मेरे करीब आए, मैंने देखा डॉक्टर साहब सीरियस है, मैं कहा सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं आए होते, कसम से बड़ा खतरा था, गिर जाते, हाथ पैर टूट जाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब भी बहुत खुश हुए, चलिए इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे क़यामगाह पे पहुंचा करके फिर गए, कहा चले ताकि कोई और शुक्रिया अदा करे। बस एक ऐसी गली में पहुंचे जहां एक चोर दीवार काट रहा था, उसने दूर ही से जब उजाला देखा तो शुक्रिया नहीं गाली देने लगा, हर तेरी सत्यानाश, थोड़ी देर और ना आया होता तो मेरा काम हो जाता। ध्यान है कि नहीं दोस्तों? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, तशरीफ आउरी से पहले जमाने में अंधेरा ही अंधेरा तो था, जिंदगी के हर शोबे में अंधेरा था, हर तरह से परेशानियों में घिरा इंसान तारीकियों से आजीज आकर उजाले की भीख मांग रहा था। मौला कोई रोशनी भेज दे, कोई उजाला भेज दे, कोई नूर भेज दे। रब ने करम किया सारी मखलूक पर, और बरसों से जिस नूर को रब ने अपने पूर्वे खास में रखा हुआ था, बशरियत में लिबास पहना के तमामना के घर जलवा कर हुए किया, तो जानते हो जितने सिद्दीकी थे सब मुस्कुरा उठे, मुस्कुरा उठे, मौला तेरा एहसान है, इलाही तेरा शुक्र है। लेकिन इब्लीस
کہاں سے آ گیا؟ تو دوستو عید میلاد النبی کی خوشی منانا یہ اچھوں اور سچوں کا کام ہے. روشنی سے خوش ہونا صرف اسلامی نہیں فطری طریقہ ہے. نور آیا. آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ بولو کیسے دیکھ رہے ہو؟ ٹوپی سے کہ سر سے؟ ہاں تو بولا کرو. ہم دادو دیکھو مرتبہ مانگے ہیں؟ کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو نہیں مانگے ہیں تو جو آپ کو بنا مانگے دینا چاہیے وہ دیا کرو. پتا چلے کہ آپ بیدار ہو. آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور آنکھ میں جو نور ہے اس سے دیکھ رہے ہو. اللہ کرے آپ کی آنکھوں کا نور برقرار رہے. صحیح ہے نا؟ برقرار رہے. آمین کہہ لو. آمین. آمین. بڑی اچھی دعا کر رہا ہوں. آمین کہنے میں چوکتے ہو. آمین. آمین. تقریر کر رہا ہوں خیرانی روڈ پہ دعا کی میں نے اللہ سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمایا. تو خالی 10 آدمی آمین بولے. ہم نے کہا ہم سمجھ گئے آپ کا بزنس کیا ہے. اتنی اچھی دعا پر آمین نہیں بولے. سوچا کہیں ایسا نہ ہو آج ہی قبول ہو جائے کل ہی سے حلال کھانا پڑے. اللہ کی آنکھوں کی بینائی سلامت رکھے. میں بس چند منٹ میں گفتگو کرتا ہوں. سرکار کا حکم ہے کہ بولو. آپ کی بھی طرف سے اجازت ہے نا؟ واہ واہ بڑے شوق سے لوگ سن. اللہ تعالیٰ سب سننے کو قبول فرمائے. آمین. آنکھوں میں نور ہے آپ کے ہے نا. اللہ کرے نور برقرار رہے باقی رہے گھٹے نہیں بڑھتا رہے. اب آپ بنا وجہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اپنا نمبر بڑھائیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. میرا تو کام ہے دعا کرنا ہے کہ نہیں بھائی. ضرورت الگ ہے فیشن الگ ہے. ضرورت میں بہت کم پرسنٹ استعمال ہوتی ہے. فیشن ہی میں زیادہ استعمال ہے. دل نہ لگے تو کھول دو تاکہ ٹائم پاس ہو. اس سے آنکھوں کی بینائی پہ فرق پڑتا ہے. خیر دوسری چیزیں میں یہی سوچتا ہوں کہ ٹی وی دنیا میں اندھا کر دیتی ہے وہاں کا کرے اتنا نمبر بڑھوا رہی ہے. آنکھوں میں نور ہے. آپ اس سے مجھے دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر پوچھ لو کہ بھائی جان آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ عجیب آدمی ہے پیچھے کیسے دیکھیں؟ ہم نے کہا پیچھے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اپنے پیچھے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کہا پیچھے آنکھ نہیں ہے اس لیے نہیں دیکھتے. میرا بھی جواب ہے کہ پیچھے آنکھ نہیں ہے اس لیے نہیں دیکھتے.